So welcome back everyone. Till now we have seen various properties of rhombus and now we will solve this figure out questions. So let's begin. The first question is saying that find the remaining angles in following quadrilateral. So in these quadrilaterals, one angle they have already given and you have to find out the remaining angles in these quadrilaterals. So this is 40 degree. So this arrow is indicating that this side is parallel to this side. Matlab these two sides are parallel to each other and these two arrow indicating that these two sides are parallel to each other. Okay, so arrow indication is showing parallel lines. So since the lines are parallel, so it is a parallelogram, and we know that property of parallelogram, that is opposite angles are equal. So this angle will be equal to 40 degree to this angle. So these opposite angles will be equal. And another property of parallelogram is that the adjacent angle are supplementary, or the sum of adjacent angle is 180 degree. So R किसका एडजेसेंट एंगल है, ए का या फिर पी का? तो और ए और पी की वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री. तो आर की वैल्यू कितनी होगी, एंगल आर की वैल्यू होगी 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री. तो इट विल बी 140 डिग्री, है ना. 140 डिग्री एंगल आर की वैल्यू होगी. E is opposite angle to angle R, so both will be equal, so E will be 140 degree. Next, in this figure again second question, these two lines indicates that these two arrow indicates that these two sides are parallel, and this single arrow is showing that these two sides are parallel. Okay, so one angle is 110 degree P it is given. So opposite to P is R, so its value will be 110 degree. To find value of S, we will use the property that adjacent angle of parallelogram are supplementary. So this angle will be, S will be 180 minus 110. So it will be 70 degree. And this is opposite angle. S and Q are opposite angles, so Q will be also 70 degree. Okay, so we have used two properties of parallelogram. First, opposite angles are equal, and second, adjacent angle adds up to 180 degree. Adjacent angle adds up to 180 degree. Next, figure 3. So in this figure we have given the sides of this quadrilateral are shown by single lines, means all the sides are of equal length. The single line is showing that sides are of equal lengths. So what will be called in a quadrilateral, if all sides are equal, वैसे quadrilateral को हम क्या बोलते हैं, वैसे quadrilateral को हम rhombus बोलते हैं. rhombus, है ना, rhombus. और rhombus है तो all rhombus are parallelogram, ये भी हम लोगों ने देखा है, ऊपर हम लोगों ने देखा. और rhombus are parallelogram. तो अगर एक quadrilateral अपने को rhombus मिल रहा है तो उसमें parallelogram की सारी प्रॉपर्टीज लगेंगी, है ना. अगर आपको इस चीज का डाउट है तो चलो मैं आपको ऊपर दिखा भी देता हूँ. डेफिनेशन ऑफ rhombus कहाँ देखा हम लोगों ने, पैरेललोग्राम पर आ गए, यहाँ पे quadrilateral with equal side lengths. तो a quadrilateral in which all the sides have the same length is called rhombus. तो वो फिगर rhombus तो हो गया, इतना आप एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है. अभी जब हम लोग प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था every rhombus is a parallelogram and properties of parallelogram holds true for a rhombus as well, है ना. तो अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल को अगर हम ये
प्रूव कर दे रहे हैं कि वो रोम्बस है, तो वो पैरेललोग्राम भी होगा और पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज उस पर लगेंगी। तो इस फिगर को तो हमने प्रूव कर दिया, देखकर बता दिया कि ये रोम्बस है, तो ये पैरेललोग्राम भी हो गया। तो पैरेललोग्राम हो गया, तो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी है, जो अपोजिट साइड्स होते हैं तो पैरेलल होते हैं। तो ये अपोजिट साइड्स हमने सिंगल एरो से दिखा दिया, ये पैरेलल हो गए। फिर ये और ये वाले अपोजिट साइड्स को डबल एरो से दिखा दिया कि वो दोनों भी आपस में पैरेलल हो गए। ठीक है, अभी आते हैं, अभी ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। ये हम कैसे बोल सकते हैं, तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल। दिस इज अ ट्रायंगल यू, अगर यू वी एक्स को देखोगे आप, यू वी एक्स को, तो इसमें दो साइड्स यू वी और एक्स यू, एक्स यू ये इक्वल लेंथ्स के हो रहे हैं, तो ये आइसोसेलस हो गया, तो दोनों एंगल इक्वल होंगे। अभी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उनके समेशन ऑफ ऑल इंटरनल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो 30 प्लस 30 प्लस यू एंगल यू इज 180 डिग्री, दैट इज यू विल बी 180 माइनस 60 डिग्री, तो वैल्यू ऑफ यू विल बी 120 डिग्री। यू की वैल्यू मिल गई और अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, सो दिस विल बी 120 डिग्री। अभी आते हैं, अभी हम लोगों ने देखा था पैरेललोग्राम का अपने ये जो होता है रोम्बस की प्रॉपर्टी थी कि रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो जो इसके रोम्बस के एंगल होता है उसको बाइसेक्ट भी करता है। तो ये एंगल 30 है, तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, है ना। ये एंगल 30 है, तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर आपके मन में डाउट आ रहा है तो जस्ट यू विल क्विकली मूव टू द प्लेस वेयर वी हैव फॉर्म दिस थिंग, है ना। हमने इस वाले एग्जांपल में देखा था, हमने इनको ए बी सी डी लिया था, है ना, रोम्बस का एक डायगोनल जो उसके एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है, हमने बाद में प्रूव किया था कैसे, तो हमें मिल गया था ए इज इक्वल टू बी, एंगल बी इज इक्वल टू सी एंड एंगल, तो ये सारे एंगल आपस में इक्वल हैं। In a rhombus, opposites angle are equal to each other. The four angles formed by diagonals are equal to each other. The four angles formed by diagonals are equal to each other. यहाँ जो four angles form हो रहे हैं diagonal से are equal to each other. तो एक एंगल जैसे ही हमें पता चल गया और हमें पता है कि ये रोम्बस है, तो सारे एंगल इक्वल होंगे। तो इसी का यूज करते हुए हम इसको इजीली बना देंगे। ये एंगल हमें पता चल गया है जो डायगोनल बना रहा है रोम्बस में, तो ये सारे एंगल 20-20 डिग्री होंगे। 20 डिग्री ये लिख सकते हैं ऊपर वाली प्रॉपर्टी यूज करके, है ना। फिगर रोम्बस है क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये सिंगल लाइन दिखा रहा है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना, तो ये 20-20 डिग्री हो गया, है ना। अभी इस ट्रायंगल में दिस एंगल इज 20, दिस एंगल इज 20, तो 20 20 40 प्लस दिस एंगल ए विल बी 180 डिग्री, so this is going to be 180 minus 40 degree, that is 140 degree, and this is also going to be equal to this opposite angle 140 degree. Easy है. Now using diagonal properties, construct a parallelogram whose diagonals are of length 7 centimeter and 5 centimeter and intersect at angle of 140 degree. Okay, so you have to construct a parallelogram using the property of diagonal, and the question is giving you the length of diagonals. One diagonal is 7 centimeter, other diagonal is 5 centimeter, and diagonals are intersecting at an angle of 140 degree. Okay, so figure out question number 2 says that using properties of diagonal, construct a parallelogram whose diagonals are
of length 7 centimeter and 5 centimeter and intersect at angle of 140 degree. So you have to construct a parallelogram, and in parallelogram you have been given diagonals की लेंथ आपको पता है कितनी है 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. तो आपको प्रॉपर्टीज लगा के ये बनाना है. तो सबसे पहले क्या प्रॉपर्टी होती है, जो अपने डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल तो नहीं होते हैं लेकिन दे बाइसेक्ट्स ईच अदर, बाइसेक्ट्स ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं दूसरे को. तो आप एक डायगोनल बना लो इधर 7 सेंटीमीटर का, 7 सेंटीमीटर लेंथ का आप डायगोनल बना लो, और उसका सपोज करो आपने बनाया AC डायगोनल बना लिया. इसका सेंटर आपको स्केल से निकाल लोगे तो सेंटर आपने निकाल लिया O, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया आपने. तो AO 3.5, OC 3.5. अभी दूसरा डायगोनल 5 सेंटीमीटर का है ना, दूसरा डायगोनल 5 सेंटीमीटर का है. उसके साथ साथ आपको यहाँ पे इन डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट भी दिया हुआ है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहाँ पे वो एंगल कितना बना रहे हैं, तो 140 डिग्री. तो आप अपना प्रोटेक्टर रखोगे यहाँ पे, और 140 डिग्री कुछ कहाँ पे होगा, आई थिंक यहाँ पे कुछ 140 डिग्री आपको आएगा, है ना. तो यहाँ से आप डॉटेड लाइन बना लो, कि डॉट बना के एक डॉटेड लाइन कर लो, है ना, डॉटेड लाइन कर लो. इस लाइन को आप स्ट्रेच कर दो, है ना, लाइन को स्ट्रेच कर दो, डॉटेड लाइन को. उसके बाद इस पर आपको पता है कि दूसरा डायगोनल जो है वो 5 सेंटीमीटर का है. तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे O से आगे 2.5 सेंटीमीटर होगा. इस लाइन को आप डार्क कर लेना, 2.5 सेंटीमीटर मार्क करके इधर, और इधर 2.5 सेंटीमीटर मार्क करके आपको सपोज करो ये आपको मिल गया B और D, आपने पॉइंट को दे दिया, है ना. तो इसका लेंथ कितना है 2.5, इसका लेंथ कितना है 2.5. ये आपस में इंटरसेक्ट जो कर रहे हैं कितने एंगल पे कर रहे हैं, 140 डिग्री. अभी आपको सिंपली इन पॉइंट्स को जो है अटैच कर देना है स्ट्रेट लाइन स्केल के हेल्प से. आपको सिंपली इन पॉइंट्स को जो है अटैच कर देना है. तो आपका पैरेललोग्राम जो है वो, सॉरी ये बहुत फिर से लाइन चला गया है, कुछ ऐसा जाएगा लाइन, है ना. इस लाइन को इधर जोड़ दो, इस लाइन को इधर जोड़ दो. ये लाइन थोड़ा सही से नहीं जोड़ पाया, है ना, कुछ इधर होगा ये 3 पॉइंट. तो इस तरीके से आपका पैरेललोग्राम ये आप स्केल से करना इजीली हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूजिंग डायगोनल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस व्हिच डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ 4 and 5 सेंटीमीटर. तो आपको रोम्बस बनाना है और डायगोनल्स का लेंथ दे दिया है 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. तो आपको पता है कि जो रोम्बस होता है उसका डायगोनल्स जो रहता है वो आपस में बाइसेक्ट करता है. द डायगोनल जो होते हैं दे बाइसेक्ट्स ईच अदर, मतलब इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं एक दूसरे को. और दूसरा दे इंटरसेक्ट एट हाउ मच डिग्री, एट 90 डिग्री, है ना. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप स्केल लोगे, एक 5 सेंटीमीटर का लाइन खींच दोगे. उसको आप सपोज करो आप AC बोल रहे हो उस लाइन को, और उसका सेंटर मार्क कर लोगे. तो 2.5 AO 2.5 एंड OC इज 2.5. ये आपका एक डायगोनल हो गया. उसके बाद आपको दूसरा डायगोनल 4 सेंटीमीटर का है, और वो ये दोनों डायगोनल कितने इस पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो 90 डिग्री पे. तो आपको यहाँ पे एक कंपास रख के 90 डिग्री, प्रोटेक्टर रख के 90 डिग्री मार्क कर लेना है. उससे एक आप डॉटेड लाइन ऐसा बना लो. इस डॉटेड लाइन पे फिर आप 2 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल डायगोनल का लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर, तो O से इस तरफ 2 सेंटीमीटर, O से दूसरी तरफ 2 सेंटीमीटर का होगा वो डायगोनल, है ना. तो इसको B मार्क कर दो पॉइंट को, और C नेम कर दो पॉइंट को. उसके बाद आपको ये मिल गया पॉइंट्स. यू जस्ट हैव टू कनेक्ट A to B, B to C, C to D, और सॉरी इसको D पॉइंट आप बोलो, C to D एंड A to D. तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, इस तरीके से आपको एक रोम्बस मिल जाएगा, है ना. आप इसको मेजर करोगे जब, तो ये सारे साइड्स इक्वल लेंथ के होंगे. होप दिस इज क्लियर टू यू.
थैंक यू। नेक्स्ट क्या है हमारा इसमें? नेक्स्ट इज इन आवर चैप्टर, आई थिंक इतने ही 1 2 3 क्वेश्चन ही है फिगर इट आउट में। नेक्स्ट प्लेइंग विथ क्वाड्रिलेटरल, दिस वी विल कवर इन नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो।